گوشت کے ساتھ یہ چاول کتنے اچھے پکے ہیں، بڑے مزیدار ہیں۔ ان ہاتھوں کو چومو گے نہیں جس نے انہیں پکایا ہے؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تمہاری بھیڑیں کہاں ہیں؟ چراگاہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ اگر بھیڑیوں یا جنگلی جانوروں نے انہیں کھا لیا پھر؟ بھیڑیے صرف رات ہی کو باہر نکلتے ہیں، ویسے بھی حارث بہادر جوان ہے، وہ ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے گا۔ مجھے پانی دو۔ خدا اس جوان کو سلامت رکھے تاکہ پورے سال وہ تمہارے کام آئے۔ یہ لو۔ وہ بہت محنتی اور ذمہ دار ہے، اسے میں اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ خدا کا شکر ہے۔ کیا تمہیں کپڑے دھونے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں؟ کپڑے دھونے کے علاوہ برتن صاف کرنا، گھر میں جھاڑو دینا اور پھر دودھ سے مکھن الگ کرنا بھی میرے کام ہے۔ حقیقت میں بڑے سخت کام ہے۔ میں جا رہا ہوں، بھیڑوں کو ذرا دیکھ۔ جعفر۔ ہاں بولو بارے۔ تم کوئی ضروری بات مجھے بتانے والے تھے؟ ہاں بالکل، میں تمہیں ایسی خبر سنانا چاہتا ہوں کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ پھر جلدی سے بتاؤ نا۔ ہم جلد ہی بغداد لوٹ جائیں گے۔ بغداد چلے جائیں گے؟ خدا سے امید ہے ہم جلد ہی بغداد چلے جائیں گے۔ اچھا تو یہ آپ ہیں قاضی محترم جنید، ہمیں افتخار بخشا آپ نے۔ خوش آمدید، بہت بہت خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید ایک قاضی فاضل۔ بغداد کا کوئی قاضی آپ کی ہم پلہ نہیں۔ زیادہ ہوشیاری نہ دکھاؤ خدیم، میں اتنی زیادہ تعریف کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کچھ عرصے پہلے تم میرے ساتھ دشمنی کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں حضور والا کہ میں بغداد کا ایک تاجر ہوں، اور تاجر حضرات آپ جیسے معزز لوگوں سے دشمنی نہیں رکھ سکتے۔ تشریف رکھیں محترم قاضی صاحب، تشریف رکھیں، خوش آمدید۔ اب غور سے سنو میری بات، جان لو اے خدیم، جنید سے دوستی کی شرط فریب، ریاکاری اور دھوکہ دہی سے دوری ہے۔ میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن ایک بات نہیں جانتے تم، کہ جو میرے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اس سے تعلق منقطع کرو۔ اس بات سے جناب اعلیٰ میں مشکل میں پڑ سکتا ہوں، کیونکہ میری گردن پر بہلول کا بہت احسان ہے۔ یعنی پھر ہم دونوں کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اور بہلول مخالف صف میں ہیں اور کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بہتر ہے اس بات کو ختم کریں۔ کیا چیز سبب بنی یہاں آنے کی؟ تمہیں کاروبار کی پیشکش کرتا ہوں۔ میں مدتوں سے اس پیشکش کے انتظار میں ہوں۔ بہتر ہے جلدی نہ کرو بارے، کہا نہ اس موضوع پر غور کریں گے۔ آخر کس لیے بغداد جانے کا ارادہ کیا تم نے؟ ایک قافلہ بغداد کی طرف جا رہا ہے، اس لیے۔ بھیڑوں کا کیا کرو گے؟ بیچ دیں گے۔ کیا تم اپنی بھیڑوں کو بیچ دو گے؟ ممکن ہے، انہیں حارث کے پاس چھوڑ دیں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل تمہارے اس کام سے پریشان ہے۔ پریشان مت ہو اور سفر کی تیاری کرو۔ اوہ، کیا مجھے امید اور عشق کی سرزمین لے جا رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانا چاہتی ہو؟ کیوں نہیں جانا چاہتی؟ وہ جگہ تو میری جنم بھومی ہے۔ پھر کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا یہاں دل لگ گیا ہے لیکن پھر بھی تم وہیں کے گن گاتی رہتی ہو؟ یہ اتنا بڑا گھر، ممکن ہے یہاں سے جا کر میں اسے بھی بھول جاؤں، لیکن اس چھوٹے گھر کے سامنے جسے ہم چھوڑ کر آئے یہ کچھ بھی نہیں۔ اپنے بغداد جانے کا سبب تو بتاؤ، کیوں وہاں جا رہے ہو؟ چاہتا ہوں کوئی کاروبار کروں،
तुमने कहा कारोबार? हाँ, आप चरवाहे की जगह एक कारोबार करोगे। क्या अभी मैं ताजिर नहीं हूँ बारे? क्या दूध, दही, गोश्त, ऊन और खाल बेचना तुम्हारी नजर में एक तरह का कारोबार नहीं है? क्या कहते हो? अब तक मैंने दूसरे तमाम कारोबारों के बारे में तो सोचा था, इस कारोबार के अलावा जो तुम कह रहे हो। लोहे का कारोबार ये हाल ही में बगदाद आया है। जानते हो, और नया कारोबार फायदा देता है। इसके बारे में कुछ सोचना होगा। अच्छी तरह सोच कर फैसला करो हुदैम, ज्यादा शक मत करो। लोहे का कारोबार जनाब काजी ज्यादा रकम मांगता है और मेरे पास अभी इतना सरमाया नहीं है। फिर अपने लिए कुछ सोच ले हुदैम। तो फिर क्या करूं मैं? इन अजनास की जगह लोहा खरीद ले। वो कैसे? काजी साहब, ये कारोबार मुझे अपने बाबा से विरासत में मिला है। हर नई नस्ल को नया काम करना चाहिए। हर नए दौर का अपना कारोबार होता है। मैंने तुम्हारे और अपने दरमियान निफाकत की वजह से ये पेशकश की है हुदैम। तुम्हारा मतलब है कि हमारी दोस्ती नई है? हाँ? अगर तुम्हें इस दोस्ती पर कोई शक है तो इसे तोड़ दे। क्या ये मुमकिन है काजी जैसे फाजिल और करीम शख्स से, जो बाजार कर का बेहतरीन काजी है, से कोई अच्छा दोस्त मिले? खुदा की कसम, खुदा की कसम, तुम्हारे झूठ को सच से परखना बहुत मुश्किल है। मेरा दिल न तोड़ो। क्या मेरी दोस्ती पर शक है जनाबे आली? इन बातों को छोड़ो हुदैम, जो तुम्हें कहा है उसके बारे में सोचो। ऐसे कारोबार को मैं कैसे छोड़ दूं काजी, जिसमें मैंने अपनी पूरी उम्र गुजार दी है? अबा वहाब, ओ अबा वहाब, कहाँ हो? अपनी जरूरत की तलाश में जा रहा हूँ। तुम्हारी जरूरत जानता हूँ, आओ मेरे पास। बहुत अच्छा। लेकिन तुम इतने होशियार नहीं लगते हो। अबा वहाब, अबा वहाब, अगर कोई छोटा सा मशवरा दोगे तो जान लूंगा। भूखा चाहता है इस दानिक से कनात इख्तियार करे। ये भूखा चाहता है इस एक दानिक से कनात इख्तियार करे। अबा वहाब, तुम जरा कुछ और मदद करो मेरी, समझ जाऊंगा मैं। ठीक है, सुन, अगर इसे पानी में भिगो दें बहुत नरम हो जाएगी। बहुत अच्छा। और अगर आग पर रख दें बहुत सख्त हो जाएगी। अब समझ आ गया क्या चाहिए तुम्हें। तुम्हें दरख्त की छाल का टुकड़ा चाहिए। अफसोस है तुम पर, कितना कुन सहन है तेरा। जवाब भी बेरब्त। क्या मैं उठूं जो दरख्त की छाल खाऊं? ठीक है, ठीक है। अगर तीसरी मर्तबा कुछ बताओगे तो जवाब दे दूंगा। बताओ ना। सुन, ये असल दाना है, सुंबुल की शाख से हासिल हुआ और आखिर में चक्की के सुपुर्द हो गया। लगता है समझ आ गया, लेकिन कुछ और बताओ अबा वहाब। ठीक है, हाथों में गोल होता है, तंदूर में पकता है। इतना सख्त मुअम्मा मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना। फिर अपने नए दोस्त से कहना कि इसे हल करे, लेकिन ख्याल रखना इसके जवाब से होशियार रहना, कहीं वो इसे अपने फायदे में ना ले जाए। चल मेरे घोड़े, चल। अबा वहाब, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। गाय के गोश्त के कबाब तो नहीं? आखिरकार हम अपने शहर पहुंच गए। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है बारे? अभी नहीं पहुंचे, आओ यहाँ बैठ जाओ। थकन के बाद मिलने वाले आराम में कितना मजा है। कुछ देर यहाँ बैठते हैं। सफर थका देता है, पैरों को जरा आराम की जरूरत है। यहाँ आराम करें जबकि हमारा घर नजदीक है। घर को छोड़ो, जल्दी से खाना निकालो, भूख से मरा जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है।
میرے مسئلے کا جواب یہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح جواب ہو۔ پھر صحیح جواب کیا ہے؟ لگتا ہے تمہارا مطلب اصفہان کی برف تھا۔ اصفہان کی برف؟ اصفہان کی برف جب آگ میں جائے تو سخت ہو جائے۔ لگتا ہے پیاسا ہے تو، ایسا کر پینے کی جگہ اصفہان کی برف سے کوزہ بھر کر اپنے سر پر ڈال لے۔ چل چل میرے گھوڑے چل چل۔ سچ کہتے ہیں کہ انسان کی زینت اس کی عقل ہے۔ ہاں، خدا حافظ جناب۔ خدا حافظ۔ خدا آپ کو کاروبار خدا میں حافظ۔ ترقی عطا کرے۔ کون شخص تھا جس سے تم بات کر رہے تھے؟ سمرقند کا ایک تاجر تھا، سالوں سے اسے جانتا ہوں۔ لیکن میں نے سنا کہ تم دونوں لوہے کے کاروبار پر بات کر رہے تھے۔ وہ لوہے کے کاروبار میں بہت ماہر ہے، اسی لیے مجھے اس کاروبار کا مشورہ دے رہا تھا۔ کیا تم لوہے کا کاروبار کرو گے؟ لوہے کا کاروبار آج کل بہت فائدہ مند ہے۔ لیکن پھر وہ بھیڑیں؟ انہیں بھی دیکھ لیں گے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ مجھے یہ کاروبار پسند نہیں۔ میں پہلے معلومات حاصل کروں گا۔ ڈرتی ہوں کہ کہیں تمہیں نقصان نہ ہو جائے۔ کیوں نقصان ہوگا بارے؟ تمہیں اس کا تجربہ نہیں۔ اس میں کیا حرج ہے کہ دو فائدہ مند کاروبار ایک ساتھ ہمارے پاس ہوں؟ اگر ایسا ہے تو آؤ پہلے ان پیسوں سے اپنے گھر کو بڑا کر کے اس میں کچھ سامان ڈال دیتے ہیں۔ جانتا تھا کہ تمہارے پاس اس کام کی مخالفت میں ضرور کوئی دلیل ہوگی، تمہاری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی، اس شرط پر کہ جو کام شروع کیا ہے وہ کام پورا ہو جائے۔ خوش آمدید شہر بغداد میں، ایک بار پھر خوش آمدید، خوش آمدید۔ مدت سے ہم ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے، اب پھر یہاں ہیں۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ دور سے دیکھ رہا تھا، ہر دکان کا جائزہ لیتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن ہاتھوں میں خریدی ہوئی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ لوہے اور اس کی قیمت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ لوہے اور اس کی قیمت کے بارے میں؟ کیوں؟ کاروبار کرنا ہے۔ لوہے کا کاروبار کرو گے؟ ہاں بالکل، آج کل لوہے کا کاروبار بڑا فائدہ مند ہے۔ بتانا ذرا، کس سے تمہیں اس کاروبار کا کہا ہے؟ ان لوگوں سے جو اس بازار میں رہتے ہیں، میں نے پوچھ گچھ کی ہے۔ افسوس ہے ان پر، جب بھی کسی کے ہاتھ میں پیسہ دیکھتے ہیں اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر تم کیا کہتے ہو؟ ہاں وہی کہتا ہوں جو تمہارے مفاد میں ہے، تمہارے پیسے بچانا چاہتا ہوں، آگے تمہاری مرضی۔ سنو ابن دریب، بتایا نہیں تم نے جعفر، لوہے کے کاروبار کا کیا بنا؟ آج ہی کچھ مال خریدا ہے۔ خرید لیا تم نے؟ تمہیں کیا ہوا بارے؟ کہیں جلد بازی تو نہیں کر دی تم نے؟ کاروبار میں جلدی کرنا اور وقت پر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بازار میں ایک تاجر ملا تھا جو لوہا سب سے کم قیمت میں بیچ رہا تھا، خرید لیا، لیکن میں یہ لوہا ابھی نہیں بیچوں گا۔ وہ کیوں؟ لوہے کو کچھ عرصے کے لیے ذخیرہ کروں گا، جب اس کی قیمت بڑھے گی تو بیچ دوں گا، اس سے مجھے زیادہ منافع ہوگا۔ ڈرتی ہوں کہیں تمہیں نقصان نہ ہو جائے۔ لوہا کبھی ضائع نہیں ہوتا، اور بغداد کے لوگوں کو تو لوہے کی شدید ضرورت ہے۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ جو تمہیں بتاؤں گا۔ اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ گلگان واپس چلتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو تم جعفر؟ وہ جو ابھی تم نے سنا، گلگان واپس جائیں گے۔ واپس جا کر کیا کریں گی؟ جو چیز بھی ہمارے پاس وہاں ہے اسے بیچ دیں گے، پھر پیسے یہاں لا کر اس گھر کو بڑا کریں گے اور کچھ سامان خریدیں گے، اس کے بعد لوہے کا کاروبار شروع کریں گے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ اب میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہرحال تم میرے ساتھ چلو گی۔ تمہارے ساتھ چلوں گی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اکیلے ہی گلگان چلے جاؤں، تمہیں یہاں چھوڑ کر۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس سے لوہے کا کاروبار شروع کیا ہے قاضی صاحب؟ کوئی بہت ہی عقل مند ہوگا، بہت فائدہ ملے گا اسے ادیم۔ وہ جعفر ابن درید ہے۔ کیا کہا؟ میں نے کہا جعفر ابن درید۔ میرا پڑوسی؟ ہاں، تمہارا پڑوسی ہے قاضی۔
कुछ दिन पहले वो यहाँ आया था, बड़ी मिकदार में उसने बाजार से लोहा खरीदा और अब चाहता है उसे बेच डाले। इतने पैसे कहाँ से उसके हाथ लगे, जबकि उसे आए हुए एक हफ्ता भी नहीं गुजरा है। मुमकिन है आने से पहले उसे इस कारोबार का इल्म हो और पैसे साथ ही लाया हो। बदकिस्मती ही बदकिस्मती है, बदकिस्मती ही बदकिस्मती है। ऐ खुदा हमारी सुन, ऐ खुदा हमारी सुन। किस बदकिस्मती की बात कर रहे हैं काजी मोहतरम? मैं तो इस कोशिश में था कि उसका घर खरीदूं, लेकिन अब अगर उसका कारोबार जम गया तो फिर कहीं वो मेरा घर न खरीद ले। समझ आया? खुदा मेरी मदद कर, खुदा मेरी मदद कर। चल मेरे घोड़े, चल चल मेरे घोड़े, छोड़ मेरे घोड़े को वरना ये लात मारेगा। तुम दोनों में से मुझे कौन लात मारेगा, तुम या तुम्हारा चलो घोड़ा? अपनी जगह एक दूसरे से बदल लेते हैं इब्ने दुरैद। कैसे तुमने मुझे पहचाना? तुम्हारी आवाज मेरे लिए जानी पहचानी है। क्या खबर है अबा वहाब? काश अच्छी खबर होती कि खलीफा का गुस्सा, काजी का जुल्म सितम और दरोगा की गुंडागर्दी न होती। हाँ, यानी कुछ भी सही नहीं। कुछ नेक लोग हैं जो दंगा फसाद से नफरत करते हैं। इस वक्त कहाँ जा रहे हो अबा वहाब? उसी रोटी की तलाश में। तुम्हारे लोहे के कारोबार के बारे में क्या राय है? लोहे का कारोबार जो जानता है उसी के लिए फायदेमंद है। चल चल मेरे घोड़े, चल चल। क्या हुआ बारे? कुछ नहीं। अभी इस कारोबार को छोड़ो, सफर की तैयारी करो। जो चीजें सफर के लिए जरूरी हैं तैयार कर ली। हाँ। गुरगान में हमारा ज्यादा क़याम नहीं होगा, वादा करता हूँ तुमसे। वो जो लोहा खरीदा उसका क्या हुआ? वो तमाम लोहा एक ईमानदार शख्स के हवाले कर दिया है। कौन है वो? खुज़ैम इब्न क़ैस एक ईमानदार शख्स है। ये वो है जो तुम्हें चाहिए था और ये तुम्हारा। खुशामदीद काजी मोहतरम। बताओ मुझे आखिर आज ये क्या हो गया है कि तमाम लोग तुम्हारी दुकान की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं? अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब अता करता है काजी साहब। बगदाद के लोग अचानक तुम्हारी दुकान के सामान के आशिक हो गए हैं कि इतना रश लगा लिया। काजी साहब, दुकान के सामान से उनका क्या ताल्लुक? मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ। वो तो लोहा खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं काजी। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि लोहे के कारोबार में बहुत फायदा है हुदैम? क्या मैंने तुम्हारी इस बात को रद्द किया था? लेकिन लोहे के कारोबार का तेरी दुकान से क्या ताल्लुक? क्या तुम नहीं जानते कि जाफर ने ये लोहा मेरे पास बतौर अमानत रखा है सफर से वापसी तक? आखिर किस लिए ऐसा किया तुमने हुदैम? पुरानी दोस्ती की वजह से जो सालों से हमारे दरमियान चल रही है। हम तुमसे खुदाहाफिजी कर रहे हैं अब्बा वहाब। कहाँ जा रहे हो? हम गुरगान जा रहे हैं। और इस घर का क्या होगा? वापिस आने तक ताला लगा दिया है। और तुम्हारा लोहा? हुज़ैब के पास अमानतन रखा है। हुज़ैम अत्तार? हाँ। फिर एक दिन तुम उसकी शिकायत लेकर मेरे पास ही आओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? अक्लमंद कभी भी 2 बार बिल में हाथ नहीं डालता। हुज़ैम मेरा बहुत पुराना दोस्त है। वो दोस्ती को गंदा कर देगा इब्ने दुरैद। हुज़ैब अब पहले जैसा नहीं रहा। अपना माल संभाल कब्ल इसके कि तू उसे खो दे। चल मेरे घोड़े। चल। क्या सुना नहीं तुमने? उसने तुमसे क्या कहा? जल्दी करो और लोहा हुज़ैब के घर से बाहर निकाल लो। मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या अब्बा वहाब की नसीहत नहीं सुनी?
नसीहत करने वाला कौन है पता है तुम्हें? भूल गए एक दफा काजी जुनैद से कैसे तुम्हारी जान छुड़ाई थी? नहीं पता मुझे, सच मेरी समझ में नहीं आता, क्या करूं? अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो मैं खुद उसके पास जाती हूँ। अफसोस है तुम पर बारे, मेरी इजाजत के बगैर वहाँ जाओगी। क्या पता वो लौट आए। इब्ने दुरैद को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लोहे में जान है उसकी। कब तक इंतजार करूं? 2 साल हो गए हैं, मेरा घर लोहे से भरा हुआ है और उसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है। तेरी हालत उस प्यासे ऊंट की तरह है, पानी जिसकी पीठ पर होता है लेकिन वो उसे पी नहीं सकता। तुमसे एक मशवरा मांगता हूँ फाजिल काजी, मेरी जान छुड़ा इस मुसीबत तू से। जो चाहता है मैं वो नहीं कर सकता। ये शख्स कई बार सफर पर गया और फिर लौट आया, और फिर ये कि उसकी बीवी यहाँ पर है, वो कभी भी आ सकता है अपने माल के लिए। बताओ फिर मैं क्या करूं? मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या करूं, बल्कि जब तुम कुछ करोगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। उज़ैम, मैं वो वक्त कभी नहीं भूल सकता जब उसने मुझे बहलूल के साथ मिलकर जिंदा ताबूत में रख दिया था और जिंदा दफन करने लगा था। हुसैन, हुसैन, यहाँ से चला जा। कहा ना यहाँ से चला जा। क्यों? तेरे लिए खुशखबरी लाया हूँ। तुम्हें कहा ना यहाँ से चला जा, मुझे काम है। तुम्हारा दोस्त सफर से वापस आ गया है। उससे कहो कि इंतजार करे। कहाँ करे? जहन्नुम में इंतजार करे। तेरे लिए खुशखबरी है कि जाफर इब्ने दुरैद सफर से लौट आया है। आने दो उसको। कौन? अब वहाँ रुको जरा। कौन लौटा है? कौन? तेरा दोस्त जाफर इब्ने दुरैद। वो गुरगान से लौट आया है। चल भाग मेरे घोड़े, चल। जाफर इब्ने दुरैद? अब तो लोहे का सामान खत्म हो गया है, फिर कभी आना। चले जाओ। मेरे अच्छे दोस्त, मैं अपने लोहे का सामान वापस लेने आया हूँ जो मैंने तेरे पास अमानतन रखा था। कौन सा लोहा? हाँ, लोहा। तेरे लोहे का सामान तो चूहे खा गए। ये कैसे चूहे हैं जो लोहा खा जाते हैं? वो चूहे मेरे गोदाम में थे। सुन, तेरी इन झूठी बातों में आने वाला नहीं। मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। मेरा माल वापस कर। बचाओ, मैं नहीं छोड़ूंगा। बचाओ, तो कोई है। मैं तेरा सर फाड़ दूंगा। रोको इसे। देखो, मुझे मेरा रोको माल इसे। वापस दे। देखो मुझे मार चूहे रहा खा है। गए। मुझे झूठ बोलता बचाओ। है। मुझे दे मेरा माल बचाओ। वापस। है छोड़ूंगा नहीं मैं कोई तुझे। वाला? जान से मार दूंगा। बचाओ। काजी साहब, क्या तुम उस धोखेबाज की बात पर यकीन कर रहे हो? ऐ जाफर, मैं कैसे इसकी बात रद्द कर सकता हूँ, क्योंकि उसने कसम खाई कि जब वो गोदाम में गया तो चूहे तमाम लोहा खा चुके थे। अगर ये शुरू में देख लेता कि चूहे लोहा खा रहे हैं और कुछ न करता तो मैं इसे अमानत में खयानत की सजा देता, लेकिन ये गोदाम में उस वक्त गया जब चूहे लोहा खा चुके थे, इसलिए उसका कोई कसूर नहीं है। जाफर, ऐ काश अबा वहाब तुझे उसी दिन जिंदा दरगोर कर देता। मुझे धमकी दे रहा है जाफर। यही कुल मेरा सरमाया था जिसे खून पसीना एक करके मैंने जमा किया था। मैं इतनी आसानी से तुम दोनों को हड़प नहीं करने दूंगा। ये दास्तान है मेरी अबा वहाब। मैं सख्त ना उम्मीद हो के एक लाचार के तौर पे तुम्हारे पास आया हूँ। दरअसल मैंने गलती की, मुझे इससे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी। तुमने मुझे खतरे से आगाह भी किया था, लेकिन फिर भी मैंने हुज़ैम पर एतमाद किया। एक ऐसा खाइन जिसे अब जुनैद जैसे काजी की हिमायत हासिल है, जो कभी भी इंसाफ नहीं करता। क्या कहते हो अबा वहाब? हाँ? या अल्लाह, जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। जाओ जाओ।
क्या हुआ है काजी मोहतरम? खलीफा का हुक्म है और उसने बहलूल को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो चूहों को तलाश करे और उनका खात्मा कर दे। अब उन चूहों में वो खुद भी शामिल है। यानी अब इसकी जिम्मेदारी है कि शहर को चूहों से पाक कर दे। कैसे उनका पीछा करेगा? बिल्ली की तरह, म्याऊ, या फिर उल्लू की तरह? नहीं, बल्कि हथौड़े की मदद से। अपने घर से ये काम शुरू करोगे या जाफर के घर से? इंशाअल्लाह हुसैन के घर से शुरू करूंगा, वहीं से जहाँ से चूहों ने जाफर के लोहे खाए थे। फिर तुम्हारी घर की तरफ आ जाएंगे। मेरे घर में क्या करोगे? आया मेरे घर का सहन खोदोगे या सामने वाली जमीन को? घर की छत को तोड़ना शुरू करूंगा, क्योंकि चूहे छत पर रहना पसंद करते हैं। जल्दी से ऊपर जाओ। नहीं नहीं, रुक जाओ, मेरे घर को छोड़ दो। ये खलीफा का हुक्मनामा है। उसके इस हुक्मनामे में मुझे इजाजत दी गई है कि मैं चूहों को खत्म करने के लिए कोई भी हरबा इख्तियार कर सकता हूँ। मैंने तेरी छत को गिराने का फैसला किया। काजी मोहतरम, आपसे इल्तिजा है, कुछ करें। अगर चूहे तेरे घर ना मिले तो फिर जरूर वो काजी के घर की तरफ भागे होंगे। ये सब खलीफा का हुक्म है। लोहे को कहाँ छुपाया हुसैन? मेरी जान छोड़ दे, मुझे जाने दे। जनाबे वाला, काजी साहब कहाँ जा रहे हैं? बताओ, तुम क्या करना चाहते हो बहलूल? शहर को लोहा खाने वालों से छुटकारा दिलाना है। जाओ जल्दी, तोड़ फोड़ शुरू करो। रुक जाओ, घर की छत पर ना जाओ, रुक जाओ। मैं एतराफ करता हूँ, सब चीजों का एतराफ करता हूँ। रुक जाओ, इंतजार करो, जब तक मैं ना कहूँ नीचे आ जाओ। मैं एतराफ करता हूँ कि इस शख्स का सारा लोहा मैंने बेच दिया है और उसके पैसे एक थैले में रखे हैं जो कि उस कमरे में है। तुमने लोहे के पैसे जिस थैले में रखे, जल्दी से जाकर ले आओ। ठीक है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ बाबा, मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी दिला दी तुमने। ये लो जाफर के लोहे के पैसे, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं लिया है। इसे दे दे या मुझे दे दे, जाफर के पैसे उसको मिल जाएंगे। हुसैन, तुम ज्यादा खुशफहमी का शिकार मत हो, तुम्हारी सजा अभी बाकी है। और जेल तुम्हारे इंतजार में है। हारून रशीद के पास जा रहा हूँ, उसे ये बताने कि लोहा खाने वाले चूहों का मैंने खात्मा कर दिया है। तुम दोनों चलो आओ मेरे साथ। और इस तरह हुसैन जेल चला गया। और काजी जुनैद का क्या बना? काजी जुनैद तो फिलहाल मुझसे बच निकला, लेकिन कभी तो मेरे जाल में फंसेगा। चाहता हूँ कि कोई नया कारोबार शुरू करूँ। फिर से जाफर? सोच रहा हूँ कि अब अवाब से टोकरियाँ खरीदूं। खजूरे बेचने वाले ताजिर से जान पहचान हुई है। हाँ, कहीं वो आसिम इब्ने लैस तो नहीं? हाँ वही है। क्या तुम उसे जानते हो? सुन ले जाफर, अब तीसरी बार मैं तेरी मदद को नहीं आऊंगा।